Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest, Akanksha Dhawan. She is a healer sharing her inspiring journey of healing, mindset and self growth. हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे स्टूडियो में आ चुकी हैं एंड उनका स्वागत करते हैं। वेलकम आकांक्षा जी। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? I am really doing good. It has been a wonderful day so far. So, yeah, God bless. So, Akanksha ji, let's start the incredible conversation with you, right? sure. या Yeah, सो आपकी लाइफ का कौन सा फेज था जहां से आपकी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई? okay. So, let me start with a very positive note. पहली बात तो ऐसा है कि my life has really been very incredible. I mean, it has been like a roller coaster, but amazing journey it has been so far. And I'm looking forward to make it more incredible now. So, talking about healing, actually, there were some phases in my life wherein कहीं ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है और आगे शायद रास्ता नजर नहीं आ रहा था बिकॉज I mean, due to some personal things, and I lost both my parents in the same year and in 2023, and वहीं से शायद ये healing की जर्नी शुरू हुई when I did not get the time to process my emotions, and when I was going through a dark phase due to losing my parents and certain personal issues. So I started healing. I started this healing journey, and I manifested my coach, my mentors, and my healing journey started. And since I have started healing myself, my life has been magical, and now I am a certified healer myself. And I'm really on a mission. And the purpose of my life is to कि कैसे भी अगर किसी भी इंसान के लाइफ में 1% भी पॉजिटिव बदलाव आता है इन हीलिंग टेक्निक से, या फिर जो भी हम पॉजिटिविटी की बातें करते हैं उनसे, सो आई थिंक दैट इज द पर्पस आई एम लिविंग फॉर नाउ. So apart from being an IT consultant for 20 years, I have launched myself as a healer now, a holistic healer, and I'm really looking forward to this journey now. So that is how I started my healing and now being a healer myself. ग्रेशियस। सो पावर ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है? It is more than a lifestyle, I must say. It is embedded into my way of living. जिस तरह हम जीते हैं, हर क्षण पॉजिटिविटी में ही जीती हूँ मैं, एंड दैट इज हाउ आई हैव गॉट दिस पावर. And power of positivity is one of the segment on Spotify, a show on Spotify, which is one of the segment of Reclaim Your Light. The brand that I own is Reclaim Your Light. And power of positivity is obviously embedded, as I said, into my lifestyle because it is really magical. I mean, जितना जितना ज्यादा हम पॉजिटिव बिहेवियर अपने बिहेवियरल पैटर्न्स हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में, हमारे इमोशंस में लाते हैं, आई थिंक we multiply the happiness in our life, and that has been my transformation journey since I started healing myself. So yeah, I mean, before healing also, I mean, बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि there is a purpose for which I have born. अभी तक मुझे वो पर्पस मिला नहीं था, बट या आफ्टर गेटिंग इनटू दिस फील्ड नाउ आई अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर. एंड या तो इट इज लाइक जैसे जितना हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाएंगे, वी आर गोइंग टू गेट वॉट एवर we are born for. And I mean, manifestations, and if you talk about वो बोलते हैं ना, ऊंचाई के शिखर पर अगर पहुंचना है ना, तो ये शुरुआत है. पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप, आई मस्ट से. एब्सोल्युटली राइट। तो आज के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी को डेली रूटीन का पार्ट कैसे बनाया जा सकता है?
Okay, so the first and the most important step is that is हम सबको पता ही है but हम actually शायद follow करना भूल गए हैं. So yeah, the basic thing is start being thankful for every small thing in your life. Every little thing in your life. Start feeling that gratitude within. Because sometimes we feel entitled, we take things for granted, and हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है. But what healing, what positivity says is wherever your focus goes, your energy flows. तो हमें उस एनर्जी को उन 100 चीजों को थैंकफुल बोलने में लगाना है जो हमारे पास हैं, ना कि उन 4 चीजों के लिए रोने पर जो हमारे पास नहीं है. नहीं है. राइट, राइट, राइट. आपकी हीलिंग सेशंस में सबसे ज्यादा लोग किस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आते हैं? ओके, सो हीलिंग देखिए, हम 4 एस्पेक्ट्स, 4 पिलर्स पे हीलिंग करते हैं. सो करियर, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. सो एंड इमोशनल पेन जो होता है मोस्टली उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. So if you work on your emotions and if we divert our energy towards the focus that we want to put on what we want to achieve in life, then पूरा ऐसे बोलते हैं ना, जिस वक्त जिस पल ये हमको एहसास होता है ना, उस वक्त सारा खेल बदल जाएगा उसी पल. And then you just start flowing into that journey ki, I mean, gratitude has so much power. The healing techniques that we provide are completely scientific, proven by clinical psychologists, and ये सारे आजमाई हुई चीजें हैं. And it also relates back to our own जो हमारे शास्त्रों में लिखा है या वहीं से ये चला आ रहा है. बट या इट देर इज अ, अब ये वक्त आया है कि दैट वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स, understand that the power lies within us, and once you just tap into that power now, I mean, the life becomes incredible. So it starts with working on your emotions, and also the area हम ये कहते हैं कि okay, physical fitness is just for your body, but physical fitness is very deep. It is actually for energizing your soul from within. So physical से लेकर emotional, and then yeah, health related issues ज्यादा आते हैं. मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं लोगों के लाइफ में. सो वो वी वर्क ऑन दोस चैलेंजेस एज वेल. ओके. कोई ऐसी या हीलिंग सक्सेस स्टोरी जो आपको आपके दिल को छूता हो, कभी भूल ना पाई हो आप? देखिए, सक्सेस स्टोरीज तो देखिए कैसे है ना कि इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द success story, as in if I talk about just the manifestation part of it, just the gratitude part of it, मेरे लिए it has been always, I mean, I have seen, I am a very big fan of SRK. तो मी जब टू. उनकी जर्नी को हम देखते हैं तो आई रियली गेट इंस्पायर्ड. आई गेट इंस्पायर्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. I mean, these are the live examples that we see. I see the success stories of the scientists that we had in the past. Einstein se lekar the Newton's law that we use. So all these great people have used these techniques in their life. Now, for example, there is this book that I'm reading. वहाँ उसी में से gratitude, मतलब literally bit by bit it talks about gratitude, how it transforms your life. So when we talk about Oprah Winfrey, हम सभी उनको जानते हैं. So the life she had, but what she says is the day I started thanking for every little thing in my life, the opportunities, the money, the bounty of my life increased every single day. So these are the, अब जब ये बड़े बड़े नाम हैं हम लेते हैं, तो this is what I get inspired by. So मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. Then the live story is of my own mentor, Mr. Deepak Jain.
जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, और अभी भी हम वी डू दो सेशंस, या सो जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, सो हिज ओन स्टोरी फ्रॉम लाइक ऐसे बोलते हैं ना, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, सो ऐसा, एंड माय ओन जर्नी. सो आई मीन आई actually started this manifesting, working on myself way back. And I mean, quite a few years back, started believing in these things, started experimenting these things in my own life, and my life transformed magically. So, वंडरफुल. हीलिंग और मेडिकल साइंस की बात करें अगर हम, तो इसके बीच का बैलेंस आप कैसे मेंटेन करती हैं? ओके, सो ये हीलिंग टेक्निक्स जो है ना, ये हमें एक्चुअली सिखाती हैं कि जो आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो उसे ये हीलिंग्स करने के बाद आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने लगती है. एंड इट इज दैट यू स्टार्ट बिलीविंग एंड यू गो थ्रू दैट ट्रीटमेंट एंड इट वर्क्स, द ट्रीटमेंट वर्क्स वंडरफुली. सो ऐसा नहीं है कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, या फॉर emotional challenges, for getting into the positive energy, yes, the healing will certainly work. However, if you're going through some critical issues, critical body issues, you certainly have to take those treatments very seriously. I mean, मेरे लिए तो डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे जो है ना, आई ट्रीट देम लाइक गॉड. तो जो वो बोलेंगे वही करना है, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू फोकस ऑन अवर सेल्फ कि नहीं भैया, ठीक होना ही है. आई मीन, पीपल गिव अप ना, कि नहीं यार, नहीं हो रहा, नहीं चल रहा. बट मुझे ऐसा लगता है कि नेवर गिविंग अप शुड बी दी एटीट्यूड, एंड दैट्स हाउ यूनिवर्स भी समझ जाता है कि भाई ये तो गिव अप ही नहीं करता, या गिव ये अप तो गिव करने अप का ही तो नहीं कोई करती. मतलब ही नहीं है. गिव अप या करने से दैट्स तो ट्रू. आप अपने आप को सिर्फ मतलब आप वर्ल्ड को तो दिखाते ही हो कि आप हार चुके हो, लेकिन आप खुद को भी खत्म कर देते हो. So बिल्कुल. yourself, you are as a own self very important at in those areas, कि आप अपने एग्जैक्टली. लिए खुद कितने important हो. राइट, So राइट. that is where the game changes. How much you love yourself. जी. तो आज के यूथ के लिए मेंटल हेल्थ को लेके आपका क्या मैसेज है? Okay. So, as I said, that these techniques that we teach are, I mean, are related way back to the yogis. It is related way back to where it is coming from our own culture. जहां पर meditations को इतना importance और powerful कहा गया है. So I think to focus on any area of your life, being thankful, practicing meditations and prayer should be the way of living. It should not be कि हमें सिर्फ जब जरूरत पड़े तभी हमें pray करना है. It should be a way of your living. And अगर एक action oriented life अगर आप चाहते हैं, a goal oriented life, तो I think these techniques are really very helpful. एंड अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही पावरफुल बनाए रखने के लिए पावर ऑफ पॉजिटिविटी को यूज करना, आई थिंक इट विल वर्क मैजिकली अगेन. करेक्ट. तो आपसे अगर मैं आपके बारे में बात करूं, एज एन हीलर, जब आप खुद लो फील करती हैं, तो अपने आप को कैसे आप हील करती हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, माय मेरी हीलिंग तो डांस से भी आती है, बिकॉज आई मुझे बचपन से डांस सीखने का बड़ा शौक था, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला. सो नाउ लाइक एट दिस एज आई स्टार्टेड लर्निंग डांस, and it's been 2 years now, and now I थोड़ा अच्छा नाच लेती हूँ मैं. So yeah, that is the one aspect जहाँ I just love to dance, and that makes me so happy. And exercise, I mean, it works wonderfully when you feel low. Running, jogging, exercise, बातें करना लोगों से, and write whatever you feel. ये हमारा एक हीलिंग टेक्निक बताता है कि जब हमारे पास अगर कोई नहीं है सुनने वाला, या कभी बहुत ज्यादा ऐसे मन भर आता है ना, क्विकली स्टार्ट राइटिंग व्हाट एवर यू फील. क्विकली जो आपके मन में आता है ना, सब वो पेपर पे छाप दो, एंड देन जस्ट टेयर इट ऑफ और जस्ट बर्न इट.
So you will feel so light immediately कि आपको आपके subconsciously you will feel कि okay Is it the real? hurt. Yes, these are the techniques that we actually follow. अब It ये really if you works. it does. So आपने वो मूवी देखी है जब वी मेट? सो जब आदित्य उससे कहता है ना यू जितनी गालियां आ रही है बक दो एंड देन Yes, जस्ट yes, टेयर yes, टेयर yes, हिज फोटो एंड जस्ट फ्लश इट. yes. You can try that with your own I mean emotions. Immediately वो आपको cool down करेगा. That is one of the powerful technique. And एक और चीज है कि you will have to, I mean, if you can't write it, you can just एक voice record कर लो उसका, so that अपने आप को आप खाली कर दें. So these are just a few basic techniques, and obviously we teach other techniques which are the emotional tapping therapies. We teach the Ho'oponopono, कैसे उसको अपनी life में magically आप ये कर सकते हैं. And as I said that I am on a mission, I am on a journey now. So I've already started creating so many videos on how you can heal your health, how you can heal your body, how you can deal with your stuck emotions, and how you can let go. So ये मुझे मेरा ऐसा मानना था because I have been watching these videos myself for like years now. So अब जब मैं ये create करने लगी हूँ, so what I have, the USP that I have is कि ये बहुत short videos है. It doesn't go like more than इतने 15 minutes, 20 minutes. It is just 2 minutes, 2.5 minutes. तो आप वो quickly when you just start listening to it ना, you will feel नहीं भाई, रोने से ज्यादा thankful होने के लिए मेरे पास बहुत सी चीजें हैं. Correct. So बिल्कुल. these are the things. So reclaim your light to को फ्यूचर में आप किस लेवल तक ग्रो होता देखना चाहती हैं? Actually, I am going to make it a global household healing friend. I will not say brand to hoga ही है, but it will be your friend. It will be there for you 24/7. And it is not, हम healing बोलते ही लोग डर जाते हैं, अरे भाई मैं पागल तो नहीं हूँ. It's not about that. हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है किसी ना किसी एस्पेक्ट में अपने लाइफ के. सो फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन पीपल, उनके जो इमोशंस जो स्टक हो जाते हैं कहीं पर. सो एक्चुअली व्हेन वी डोंट प्रोसेस दोज इमोशंस, वी डोंट डील विद इट इन द राइट वे और वी डोंट मैनेज इट, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये जितने भी हमारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर साइकोसोमैटिक. सो व्हेन आपकी साइकोलॉजी इज नॉट राइट, देन वो अगर हम उसे हील नहीं करें, अगर हम उनसे डील ना करें, तो वो कुछ सालों बाद आपका फिजिकल इश्यू बन के बॉडी में बाहर आएगा. एंड दैट इज वेयर then we will be still be able to heal it, but then the journey will be a little longer. But yes, but ये जो techniques हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में अगर अप्लाई करें और हम मतलब उससे अपनी लाइफ का वे ऑफ लिविंग बना देना, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इफ देर इज अ चैलेंज और इफ देर इज अ सिचुएशन इन लाइफ ना, हम इतने पावरफुल हो जाएंगे ना कि हम बस उसको एक छोटा सा चैलेंज मान के चलेंगे एंड वी विल बी एबल टू डील विद इट इन अ मोर बोलते हैं ना, इन अ मोर हैप्पियर वे. बिकॉज जब हम टेंशन की स्थिति में रह के सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेंगे. व्हेन यू क्राइंग, वो गीता में लिखा हुआ है कि क्या आप दौड़ते हुए भोजन कर सकते हैं? नहीं. तो जब हम शांत होके बैठ जाएंगे, जब हम शांति से उस बारे में सोचेंगे और उसे बस उतना ही पावर देंगे कि भाई एक छोटी सी सिचुएशन है, आई डू नॉट गिव यू दैट मच पावर टू ruin my mental health. It is just a situation. I can manage you, I can handle you, and I can let you go from my life lovingly. उनसे लड़ना नहीं है. So that's where the game will change. और ये आजकल की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द जेंजीज, बिकॉज लोनलीनेस emotionally and the toxicity that is coming from social media. Social media is really incredible.
आई मस्ट से, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो विच इज, आई मीन, द habit of just scrolling for hours, it is impacting us somewhere. So I think there एंजाइटी has to और be a balance. डिप्रेशन तो आम बात हो गई है। That's what. So ये जो है ना, ये जो टेक्निक्स हैं, इट कैन सर्टनली किसी भी लेवल का आपका इश्यूज होंगे, इमोशनल, फाइनेंशियल, करियर, रिलेशनशिप्स, वी कैन सर्टनली डील विद दैट। हाउएवर इट विल डिपेंड कि वो कितना पुराना आपका जख्म है एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। आई मीन, कहीं जर्नी लंबी हो सकती है, कहीं एक दो सेशंस में भी इट कैन वर्क मैजिकली। सो मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका काफी मतलब पेनफुल था, एक छोटा सा एक्सीडेंट के वजह से, बट शी वाज इन अ लॉट ऑफ पेन। So when we did the healing for her, we taught her the techniques and she took it so seriously. And चौथे दिन पे उन्होंने मुझसे कहा, आकांक्षा, आई मीन वो मुझसे बड़ी हैं तो मुझे नाम से ही बुलाती, कि फोर्थ डे पे शी सेड कि ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। सो आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो delighted by that na, कि मतलब कि she's out of that pain and she is believing in herself, and now she's planning her whatever vacations, her holidays, her picnic, जो emotions इतने टाइम से stuck हुए पड़े थे कि नहीं मन कर रहा कुछ करने का, but now she says कि ना सब खुद ही हो रहा है magically when you come into that energy, कि हम तो पॉजिटिव ही हैं एंड वी कैन डील विद एनीथिंग। तो जब मैं ऐसे पेन में थी अपने लाइफ में इमोशनली, मैं अपने आप को रोज मिरर में देख के ये आई यूज टू पॉइंट फिंगर ऑन माई सेल्फ एंड आई यूज टू से कि तू तो वॉरियर है भाई, और इससे तो तू निकल जाएगी। बिकॉज आई हैव सीन एक्सट्रीम सिचुएशन सिंस माई चाइल्डहुड। आई मीन, आई हैड अ बेड रिडन ब्रदर, I was so connected with him, soul connection था हमारा, and the day when he was, I mean, he passed away, उसके एक दिन पहले मैं खुद जाके मंदिर में मन्नत मांग के कि भैया अभी से ले जाओ, because I couldn't see him in that pain. So ये सब चीजों से हम बाहर आ सकते हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। एंड आई नाउ, along with my 9 to 5 job, along with being an IT consultant, I am a mother of a teenager. I handle the house. I take care of a lot of things. I learn dance. I mean, gym to is my lifestyle, and I also write poetries. And I mean, I'm planning to write a book also. And now I'm a healer, and I'm so excited about this reclaim. Recently launched Reclaim Your Light, and looking forward to make it a global brand, as I said. So yeah, वंडरफुल। सो आकांक्षा, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है? sure. सो मॉर्निंग पर्सन या लेट नाइट थिंकर? Morning, absolutely morning. एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता हो? Fearless. पॉजिटिविटी या प्रैक्टिकलिटी? I think a combination of both. एक हीलिंग मंत्र जो आप रोज फॉलो करती हैं? Gratitude. Just be thankful for no reason. ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। साइलेंस या सॉफ्ट म्यूजिक? Silently sitting and listening to the soft music, I must say. एक हैबिट जो लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए? Stress lena, because stress is harms your body equal to smoking. यस। एक हैबिट, ओह सॉरी, यूनिवर्स पे तुरंत ट्रस्ट या सेल्फ एफर्ट? I think when self effort is 200%, universe will say tathastu. So सोशल मीडिया डिटॉक्स जरूरी या ओवर हाइप्ड? जरूरी तो नहीं है, but it should be tried, I think. बट कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Yes, it is. It is. Of course, there has to be a balance. And यही तो हमें सिखाना है, यही तो हमारा संदेश होगा दुनिया के बिल्कुल। लिए, कि बैलेंस, क्रिएट अ बैलेंस। एक And I'm a इमोशन जो liberate. लोग सबसे I'm a ज्यादा सप्रेस करते हैं? sadness. सैडनेस, यस।
आपकी लाइन आप कंप्लीट कीजिए। ट्रू हीलिंग स्टार्ट होती है जब ट्रू हीलिंग स्टार्ट होती है जब आप ये समझ लें कि सारी पावर ना आपके अंदर ही है। तो जब हम कहते हैं ना कि जब हमारे कृष्ण कहते हैं कि मैं कण कण में बसता हूं, तो वो आपके अंदर भी बसते हैं। तो वो कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। सो जस्ट नेवर गिव अप। एब्सोल्युटली। सो नाउ एनी मैसेज फॉर आर हमारी इंडिया की वुमेन्स के लिए? Yes, of course. Love yourself unconditionally, without any guilt, without any fear, without any challenge. Just love yourself unconditionally and see the magic it creates. एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर हीलिंग सर्विसेज? हमारे को यहाँ Yeah, पे so व्यूअर्स को I हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। Sure. तो we have a Instagram, Reclaim Your Light करके Instagram पे हैं हम YouTube हमारा चैनल है, so we can use those meditations and heal yourself, and directly message me for booking the personal sessions, and we can take ahead the journey, a magical journey, I must say. Thank you so much. And viewers, it was really incredible conversation with Akanksha Dhawan. लिंक शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज होते ही। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड लिंक के नीचे ही लिंक दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हैं फॉर हर हीलिंग सर्विसेज। थैंक यू सो वेरी मच मैम। Thank you.